in yesterday topic was BFS, DFS and bidirectional search, breadth first search, depth first search and bidirectional search. And today's topic is heuristic method and how to solve the 8 puzzle problem without heuristic method and with heuristic method, and discuss which process is more easy or more time consuming. Okay. So in BFS method, we can say BFS method is a uninformed search method, and here we notice in BFS there are many others method is used like FIFO, Q, and BFS is a slowest node and it is a complete process, and also we found the optimal result in BFS, and time complexity is the main factor in BFS, but the most important part is completed. Here we notice that in BFS, when root node travel in the child node, they covered one by one node simultaneously, and so we found the ultimate result. That's why we called BFS is a complete process. And FIFO in BFS, FIFO means first in first out. When we insert a parents node A, then first we out the nodes, and parents node A derive the child node B, C, and D, and B, C and D is input using FIFO or Q method. That's why first in is B child and first out in B. In this process, B derives the child nodes E and F. So in this process, one by one, notice the first in nodes are first out. So completed one by one child in a process. That's why we complete the path. And also we say in DFS method, DFS method is a also uninformed search technique, and it is a stack technique like last in first out. And it is a deepest node. It is a deepest node and incomplete circle, where if we face the circle or search space infinite number, then it is incompleted. And artificial intelligence is the study of building agent that accordingly most of the time this agent performs some kind of search algorithm in the background in order to achieve their tasks. A search problem consists a state space, a start state, and a goal state. In the following uninformed search algorithm, we are discuss the section like DFS, BFS, and Unicost.
And DFS search is an algorithm for traversing or searching tree or graph data and structure. The algorithm start at the root node and selecting some arbitrary nodes as the root node in the case of the graph, and explore the far as possible along with each branch before breathtaking. And after BFS, DFS, and bidirectional search, we discuss the informed search. Informed search means heuristic search. So today we discuss the heuristic search. Heuristic search is a informed search technique. Roshan Singh Munda. Roshan? In heuristic search, it is also called a rule of thumbs, and here we use why and what and how much purpose we used the heuristic in artificial intelligence. It is a technique designed to solve a problem. So in heuristic search, we must say it is a informed search. It is a informed search, and in this search technique, we found a good solution, but maybe found or not in optimal solution. Here we found a good solution because in this heuristic search we use various types of technique like Euclidean distance, Manhattan distance, and number of misplaced. And these three types of technique we find the result of good solution. Here is the most important part is Euclidean distance. Euclidean distance and what is the basic in heuristic method? As we say, अगर हम लोग एक मैथ में प्रॉब्लम करते हैं तो मैथ में क्या होता है? मैथ में कोई एक जो मैथ में जो प्रॉब्लम होता था लेबर का, आवर का और जो भी प्रॉब्लम होता था, तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक्स का वैल्यू हर चीज का एक वैल्यू लेते थे, उसका एक्स एक वैल्यू लेते थे. अगर एक्स वैल्यू हम लोग समझे कि उसका वैल्यू अगर एक्स हो तो एक्स पकड़ के हम लोग उसका जो प्रॉब्लम था उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते थे. तो इसलिए हियरिस्टिक में भी सेम होता है. हम लोग पहले से ही एक जो फाइनल स्टेट है उसका एक वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, और वो वैल्यू लेके हम लोग वहां पर क्या करते हैं, जो वहां पर वैल्यू लेके हम लोग क्या करते हैं, उसका जो कैलकुलेशन है वहां से हम लोग एक डिस्कस करते हैं कि उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या आएगा, फिर हम लोग उस वैल्यू से कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो इन यूक्लिडियन डिस्टेंस में क्या होता है, एस अगर स्टार्टिंग पाथ है एंड द गोल पाथ इज जी, and we suppose the starting path is x1 and y1 and the goal path is x2 and y2. In this starting point there are so many path we found, but the goal path अगर हम लोग गोल पाथ का एक रिजल्ट यहाँ पर ले ले तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग यहाँ से सही तरीका का एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग निकल सकते हैं. अगर गोल पाथ का हो गया x2 y2, देन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. That's why we calculate the shortest path of this
distance. And 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 heuristic evaluation is the process of through evaluation and assessment where the expert in a particular domain used to measure the usability of the user interface, and usability can be defined as how easily a specific user can use a particular design or say interface without facing any problem. In general, we can say the heuristic evaluation is performed to detect the issues in the design of a product. It also defines the ways to resolve those issues present in design and meet the user expectation. Heuristic evaluation is an in-depth usability test that is performed by the expert, as it is also well known to everyone that better usability and higher the number of users will interact with the product. And when we conduct the heuristic method, there is no such rule when to perform the heuristic method, but it can be performed at any stage of the design process. Most of the time, the heuristic evaluation is performed after the paper prototyping and usability test, as heuristic evaluation helps to optimize the design of the user interface. It becomes very important to perform the evaluate with final design. Define the scope of heuristic evaluation. Monitoring the batch and deadline become very important at the time of evaluation. One should also define the different parameter where they want to conduct the usability test. Analyze and summarize the result of heuristic. It is because it becomes very necessary to analyze the issue present in the design of user interface and solve those uses before the deadline. Advantage: resolve many hidden usability problem. It helps to determine the overall user to experience. Heuristic evaluation can be combined with usability testing, and better heuristic evaluation helps to engage more user. And conducted full-blown usability testing. Sometimes it is a bit hard for even expert to figure out some problems. It becomes hard to find expert to conduct the heuristic evaluation, and we will need few expert evaluate, so that is will become easier for us to stick with usability testing. And here the other two method is math hidden distance, man hidden distance, and number of misplaced. In man hidden distance, here is a start state, and it is a 8 puzzle program, and here the goal state, and we count the mismatch and the hidden mismatch place of this table. And first we found here is number one box, the number is 1 and
the goal box is same. So there is 0 number count, and the next there is a 3 and there is a 2. So one place is shifted, so there is count 1, and the another is also the mismatch place is 1, so we count 1. And here the fourth place of this box is 6, but the goal state of the sixth place is right side number 2. That's why we added +2. And next 5 is the same number of start state and goal state, so there is 0. And next the 4 steps of is 4, and here is 6, and the number of total gap is 2 in left side, so there is also added 2. And next 7, and here is 0, and the 7th path is here, so the number of mismatch is 2. And the next is 8, and the goal state of 8 is the same place of the box, so the total number of the mismatch place is 8. And the number of mismatch plays also found in the boxes of the 8 puzzle program. And next we discuss 8 puzzle problem without heuristic method and with heuristic method. 8 puzzle program is a blind search uninformed program, because here we use BFS, breadth first search technique, and breadth first search technique is a uninformed technique. So here we also use BFS, and the time complexity of the BFS of the 8 puzzle program is big 0, b to the power d. Here d is a depth and b is a branching factor. Okay, and there are 4 rules or 4 technique is used to 8 puzzle problem without heuristic method. Here is 4 moves: up moves, down moves, left and right moves. Here we calculate the state 8 puzzle program and the goal 8 puzzle program. We start the calculation of here without heuristic method 8 puzzle program. First we draw the 3 another 8 puzzle program to use up, down and left right sign. Sorry, because in this box the empty box moves on up and down and the right side, because in the left side there is no path is find. So there is the moving number is 3. So here we can describe the number where the boxes the empty box can move. So here we find the 3 number of boxes. And here is the another main point of the 8 puzzle problem without heuristic method is the time complexity, because in the time complexity we found the time complexity of the heuristic method is big of 0, b to the power d. And in the simple cases b to the power d, so here we discuss a simple cases, and here the next process is also down. Here is the empty boxes is the middle. If the empty box in the middle position, we found the 4 different moves like up, down, left or right, because in the middle position is empty, so we move in the 4 path: down, up, down moves and left or right moves. In the left move we found 1, 2, 3, 4, 5 or 6,
and the 5 is moves on the upper up, and next and here we also all the possible way where the 8 puzzle program described. So in the next round we calculate the process that in the left moves we found the ultimate or the goal state of the 8 puzzle problem. And हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देखो अगर 8 पजल प्रॉब्लम को हम लोग विदाउट हेयरिस्टिक मेथड में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इन विदाउट हेयरिस्टिक मेथड हम क्या देखेंगे, इन फर्स्ट फेज जो लेफ्ट जो एम्प्टी बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स यहाँ पर 3 साइड पर मूव कर सकता है। एक तो राइट पर कर सकता है क्योंकि वहां पर 4 है, और एक तो 1 पर कर सकता है क्योंकि वहां पर 1 है, और एक तो 7 पर कर सकता है। लेकिन लेफ्ट में कोई बॉक्स नहीं है इसलिए वो एम्प्टी बॉक्स लेफ्ट पर मूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। देखो पहला तो है जहां पर अगर राइट मूव करेगा तो क्या होगा, जो एम्प्टी बॉक्स है वो मिडिल पर आ जाएगा। फिर क्या करेगा, फिर वो एम्प्टी बॉक्स आप मूव करेगा, आप मूव करेगा तो जो 1 है वो उसके नीच में आ जाएगा। फिर एम्प्टी बॉक्स क्या करेगा, वो डाउन मूव करेगा, डाउन मूव करेगा तो जो 7 है वो ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 पोजीशन मिलता है, एक राइट मूव, एक अप मूव, एक डाउन मूव। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो पहला जो बॉक्स है उस बॉक्स में एम्प्टी बॉक्स कहां पर है, मिडिल पर है। तो एम्प्टी बॉक्स अगर मिडिल पर हो तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 मूविंग प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 मूविंग प्रोसेस में क्या होता है, एक तो राइट मूव कर सकते हैं, और एक तो लेफ्ट मूव कर सकते हैं, एक अप मूव कर सकते हैं, और एक डाउन मूव कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का क्या है, गोल स्टेट पे हम लोगों का जो है वही हम लोगों को सर्च करना पड़ेगा। ये वो गोल स्टेट आने के लिए हम लोग कितना देर तक ट्रैवल करें। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग 4 मूव कर सकता है, और बाकी जो 2 है, बाकी 2 पर देखो यहाँ पर क्या है, सेकंड पर जहां पर हम लोग अप मूव किए थे वहां पर हम लोग राइट मूव कर सकते हैं और डाउन मूव कर सकते हैं। वहां पर 2 मूव नहीं होगा। अगर जो एम्प्टी बॉक्स हो, अगर वो कॉर्नर पोजीशन पे होगा तो वहां पर 2 मूव होगा, 2 के बाद और कोई मूव नहीं होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है वहां पर भी एम्प्टी बॉक्स कहां पर है, वो कॉर्नर पर है। अगर कॉर्नर पर होगा तो वहां पर भी क्या होगा, मूव 2 मूव होगा। ठीक है, तो जो 8 पजल प्रॉब्लम विदाउट हेयरिस्टिक मेथड पे है वहां पर हम लोगों का जितना मूव होगा सब मूव को हम लोगों को ड्राइंग करना पड़ेगा और सब मूव को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बीएफएस मेथड है। बीएफएस मेथड में क्या होता है, स्टार्टिंग नोट से स्टार्ट करके हर एक नोट पर वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी बॉक्सेस यहाँ पर क्रिएट होगा सब बॉक्स को यहाँ पर डिजाइन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो बॉक्स आ रहा है जहां पर वो मिडिल बॉक्स पर एम्प्टी बॉक्स था वहां पर तो 4 मूव हो रहा है। तो 4 मूव होने से क्या होगा, वो 4 मूव का जो पॉसिबल बॉक्सेस होगा उस पॉसिबल बॉक्सेस को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो पॉसिबल बॉक्सेस हैं वहां पर हम लोग जब ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, एक बॉक्स क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हम लोग अगर डाउन मूव करेंगे तो क्या होगा, जो एम्प्टी बॉक्स है वो नीचे आ जाएगा एंड जो 5 है वो ऊपर चला जाएगा। देखो यहाँ पर जो बॉक्सेस है यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि वो सब कुछ एक ऑर्डर पे है, और बाद जो बाकी जो 3 बॉक्सेस वहां पर होगा वो यहाँ पर मैंने ड्राइंग नहीं किया है, लेकिन वो जब एग्जाम में अगर आएगा तो वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, वो ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो है उसको हम लोग जो मूव यहाँ से हो सकता है उस मूव को हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक मूव यहाँ पर करना पड़ेगा। फिर यहाँ जो आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, देखो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट राइट और डाउन मूव होगा। ठीक है, तो डाउन मूव अगर होगा तो पहला ही स्टेट पे आ जाएगा। लेफ्ट मूव होगा तो क्या होगा,
जो एम्प्टी बॉक्स है वो पहला आ जाएगा और फिर 7 8 आएगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, राइट मूव करेंगे, तो देखो हमारा जो गोल पाथ है वो गोल पाथ यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम लोग राइट मूव करेंगे तो जो गोल स्टेट है, गोल स्टेट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर गोल स्टेट आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग को हम लोग 0 से डिनोट करते हैं, वो रूट नोड है, फिर यहाँ पर 1, फिर नीचे 2, फिर नीचे 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो डेप्थ क्या है 3 है और ब्रांचिंग फैक्टर क्या है 2 या 4, जो ब्रांच हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पर कितना कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं वो तो एक सिंपल सा 8 पजल प्रोग्राम है, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ 8 पजल प्रॉब्लम कैसे वहां पर जो नंबर है वो रीअरेंज हो रहा है, ये मेरा मेन काम नहीं है। द मेन टॉपिक्स ऑफ द 8 puzzle problem is not the rearrange of the number of 8 puzzle. Here we discuss the main process that what is the process we use to 8 puzzle problem to rearrange the number. And here we notice that the simple 8 puzzle problem is easy to find the goal path, but in the worst case the complexity value is 3 to the power 20। यहाँ पर क्या हो सकता है, जो डेप्थ हो सकता है वो 20 तक जा सकता है। ठीक है, एंड ब्रांच हम लोग 3 कैसे कैलकुलेट करें, देखो द एवरेज नंबर ऑफ ब्रांच इन 8 पजल प्रोग्राम इज 3, बिकॉज यहाँ पर हम लोग कितना स्टेट फाउंड करेंगे, 3 स्टेट। अगर देखो यहाँ पर मैंने किया है ई जो बीच में है, देखो अगर एम्प्टी स्टेट, ई डिनोट्स टू एम्प्टी स्टेट, अगर एम्प्टी स्टेट बीच पर होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चारों तरफ हम लोग मूव कर सकते हैं। और एम्प्टी स्टेट बीच में कितना बार आ सकता है, एक बार ही आ सकता है। जो 8 पजल प्रोग्राम है उसमें एम्प्टी स्टेट एक बार ही आ सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर किया है वो लास्ट से किए हैं, देखो 4 into 1। ठीक है, फिर हम लोग क्या करें, ये 3 स्टेट जो होता है, 3 मूविंग में जो 3 नंबर होता है, तो वो कहां कहां पर होता है, वो दोनों के बीच में जो है, दोनों के ऊपर, दोनों के बीच में, नीचे, दोनों के बीच में, साइड और लेफ्ट और राइट, वो ई क्या होता है, दोनों के बीच पे अगर होता है तब क्या होता है, हम लोग 3 स्टेट पे हम लोग मूव कर सकता है। तो 3 स्टेट पे हम लोग अगर मूव करें तो वहां पर क्या हो रहा है, 4 बॉक्सेस होता है, इसलिए हम लोग 4 into 3। ठीक है, एंड फिर क्या है, 2 स्टेट देखो, कॉर्नर हम लोग अगर यूज करें एम्प्टी स्पेस, कॉर्नर पे हम लोग अगर एम्प्टी स्पेस को यूज करेंगे तो वहां पर क्या होगा, 2 स्टेट हम लोग मूव कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 4 into 2 किया है, तो टोटल क्या हुआ, 4 into 2, 4 into 3 plus 4, मतलब 24/9, सो 2 to the power 6 आ रहा है। ठीक है, 2 to the power 6 मतलब हम लोग वहां पर जो ब्रांचिंग फैक्टर है वो एवरेज में हम लोग क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, तो ब्रांचिंग फैक्टर जो है 3 लेंगे, तो वर्स्ट केस जो होता है, वर्स्ट केस में क्या होता है, वर्स्ट केस में होता है 3 to the power 20। देखो अगर हम लोग 8 पजल प्रॉब्लम यूज करेंगे तो यहाँ पर 3, हम लोग तो सिंपल एक ये पे डिस्कस कर रहे हैं एक पजल पर, लेकिन अगर वो पजल वर्स्ट केस में के अंदर आ गया, समझो उसका गोल स्टेट ऐसा है कि हम लोगों को फाइंड करना ही पड़ रहा है, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है, अगर ऐसा गोल स्टेट भी आ सकता है, वो डेप्थ कितना आ जाएगा, 20 नंबर तक डेप्थ आ जाएगा। तो 3 to the power 20 अगर हम लोग फाइंड करें तो उसका एक ह्यूज नंबर आ जाता है।
और समथिंग 2.6 बिलियन इस तरीका का कोई नंबर आ जाता है. सो दिस नंबर इज मोस्ट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट in this process. So we do not find the path, and if we use 15 puzzle, so there is also a difficult to find, because यहाँ पर क्या होता है 10 to the power 13 तक आ जाता है, जहां पर 10 होता है ब्रांचिंग फैक्टर एंड डेप्थ होता है 13. तो ये भी एक बड़ा प्रोसेस हो जाता है. एंड अगर 24 पजल हम लोग ले लेते हैं, 24 पजल में क्या होता है, इसमें डेप्थ जो है वो 24 तक जा सकता है और ब्रांचेस 10 होता है. इस तरीके के हम लोग अगर चेस हम लोग खेलते हैं, और जो चेस प्लेइंग में क्या होता है, वो उसमें ब्रांचिंग फैक्टर तो 35 तक आ जाता है, और क्या होता है डेप्थ का जो वैल्यू है, डेप्थ का वैल्यू 80 to 90 तक वेरी करता है. तो अगर ब्रांचेस फैक्टर 35 पर आ जाए और डेप्थ का जो वैल्यू है वो 80 से 90 तक वेरी करे, तो वहां पर डेफिनेटली ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो देगा, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा. ये जो प्रोसेस है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बड़ा हो जाएगा. उसमें शायद तो ऑप्टिमल रिजल्ट दे दिया, क्योंकि इतना देर तक अगर हम लोग सर्च करेंगे तो उसमें तो ऑप्टिमल रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन उसका सर्चिंग जो प्रोसेस है इतना बड़ा है, वो सर्चिंग प्रोसेस कभी तक माने जितना देर तक हम लोग करें तो वो कंप्लीट नहीं होगा. इट्स टेक ए लॉन्ग टाइम टू कैलकुलेट द पजल. तो क्या होता है, गुड सॉल्यूशन तो वहां पर मिल जाता है, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो मिल जाता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाता है. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग हेयरिस्टिक मेथड हम लोग यूज करते हैं. इन हेयरिस्टिक मेथड में क्या होता है, हेयरिस्टिक मेथड में क्या होता है, हम लोग पहले से ही एक स्टेट को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं. स्टेट को हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं, समझो मैं पहले बोला, हम लोग जब मैथ करते हैं, मैथ में तो हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं, जो हमारा जो आंसर होता है उसका हम लोग पहले से ही क्या करते हैं कि उसका एज, समझो किसी एक का एज निकलना है, तो हम लोग पहले से ही उसमें क्या करते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं. क्या करते हैं कि उसका वैल्यू एक्स होगा, क्योंकि अगर हम लोग उसका वैल्यू एक्स होगा, इस तरीके से हम लोग डिस्कस करें तो क्या होता है, उसको फाइंड और कैलकुलेट करने में क्या होता है, इजी हो जाता है. ठीक है. तो इन दिस हेयरिस्टिक मेथड वी also use the value of x. तो यहां पर क्या होता है, देखो समझो ये एक हेयरिस्टिक मेथड 8 पजल प्रॉब्लम है, जो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हेयरिस्टिक मेथड का हम लोग यूज कर रहे हैं. तो हेयरिस्टिक मेथड में यहाँ क्या होगा, इसमें देखो इन हेयरिस्टिक मेथड वी कैलकुलेट द हेयरिस्टिक puzzle. तो हम लोग डिस्कस किए हैं ये हेयरिस्टिक जो मेथड है, विदाउट हेयरिस्टिक मेथड हम लोग कैसे 8 पजल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो इन विदाउट हेयरिस्टिक मेथड हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो पजल है, इस पजल को हम लोग
चार टाइप्स से मूव कर सकते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। ओके, एंड इफ द एम्प्टी पाथ इन मिडिल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4 टाइप्स से मूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग, तो मैंने तो पहले बोला, यहाँ पर हम लोग क्या मूव कर सकते हैं, अप मूव कर सकते हैं, डाउन मूव कर सकते हैं और क्या राइट मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एम्प्टी स्पेस जो है, एम्प्टी स्पेस यहाँ पर क्या बीच में आ गया, तो एम्प्टी स्पेस अगर बीच में आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 4 टाइप्स पे हम लोग मूव कर सकते हैं। अगर एम्प्टी स्पेस बीच में आ जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 टाइप्स से हम लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एम्प्टी स्पेस बीच में आ जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 टाइप्स पे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मूव कैसे किए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या क्या होगा, एक तो डाउन में मूव होगा, डाउन में मूव होगा मतलब क्या होगा, जो ब्लैंक स्पेस है वो नीचे आ जाएगा और जो 5 है वो ऊपर चला जाएगा। एक ऊपर आप में मूव होगा, आप में मूव होगा मतलब क्या होगा, जो ब्लैंक स्पेस है वो ब्लैंक स्पेस का ही मूव होता है, जो नंबर है उनका मूव हम लोग नहीं बोलेंगे, जो ब्लैंक स्पेस है वो ब्लैंक स्पेस का मूव होगा। ठीक है, तो ब्लैंक स्पेस यहाँ पर क्या है, अगर अपर मूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो 2 है वो नीच में आ जाएगा। फिर राइट मूव होगा मतलब जो ब्लैंक स्पेस है वो राइट पर जाएगा। अगर लेफ्ट मूव होगा तो ब्लैंक स्पेस है जो वो लेफ्ट पे जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 4 मूव हो गया, तो इस 4 में से मैं एक ही मूव यहाँ पर राइट डाउन किया हूँ, क्योंकि इस मूव से ही वो कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो जो 4 मूव है, 4 मूव यहाँ पर करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मूव है, यहाँ पर क्या है, अगर एम्प्टी स्पेस होगा तो एम्प्टी स्पेस होगा तो यहाँ पर 2 मूव हम लोग करेंगे। सॉरी, अगर कॉर्नर स्पेस होगा, अगर कॉर्नर स्पेस होगा तो यहाँ पर हम लोग 2 मूव कर पाएंगे। एक तो हम लोग राइट मूव कर पाएंगे और एक क्या मूव करें, डाउन मूव कर पाएंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या कर पाएंगे, एक तो ऊपर मतलब आप मूव करेंगे और क्या करेंगे, एक राइट मूव करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर भी इसका 2 मूव होगा और इस यहाँ पर भी 2 मूव होगा। 2 मूव करने के बाद ये जितना तक जाएगा, समझो ये इसका प्रोसेस कंप्लीट होने तक, अगर इसका प्रोसेस 4 स्टेज पे पहले कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर 3rd स्टेप तक ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्टेप आ गया। 4 स्टेप के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका देखो ये तो एक मिडिल पर है, अगर ये दोनों के मिडिल पर अगर ये होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 मूव करेंगे, 2 या 3 मूव करेंगे, सॉरी, यहाँ पर लेफ्ट मूव होगा, राइट मूव होगा और डाउन पर मूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 मूव करेंगे। 3 मूव यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 3 मूव में एक मूव क्या आ रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर राइट मूव करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारे जो गोल स्टेट पे है वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से इसका जो प्रॉब्लम है वो विदाउट हेयरिस्टिक में सॉल्व हो गया। लेकिन इसमें जो मेन पार्ट है, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, एक ब्लाइंड सर्च टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बाई एक पाजल को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं और अप डाउन मूव पर एक एक पाजल यहाँ पर होता है और उस पाजल को हम लोग क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या मैंने बोला, BFS मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में जिस जो प्रोसेस होता है, जो यूज होता है, वही यहाँ पर यूज होगा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, B0 बीट डी, B0 बिग ऑफ 0 बीट डी होगा। B ब्रांचिंग फैक्टर है और D क्या है, D यहाँ पर डेप्थ है। ठीक है, तो here is a simple 8 puzzle problem. So this process is very simple, and if we calculate the worst number of 8 puzzle problem, here we found
द ब्रांचिंग फैक्टर इज 3 एंड द डेप्थ इज 20। अगर ये वर्स्ट केस में पड़ जाए तो डेप्थ में क्या हो सकता है, वो 20 नंबर तक जा सकता है। ठीक है, वो 20 नंबर तक जा सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर जो ब्रांचिंग फैक्टर 3 है, वो ब्रांचिंग फैक्टर 3 मैं और एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। वो ब्रांचिंग फैक्टर 3 यहाँ पर कैसे हम लोग 3 लेते हैं। 3 एक एवरेज नंबर है। एवरेज नंबर क्या है, यहाँ पर जो मूव हो रहा है, मूव कितना हो सकता है, मूव 3 टाइप्स का हो सकता है। एक तो हो सकता है 2 टाइप्स। देखो यहाँ पर जो कॉर्नर, एक तो ए हो सकता है, ये है एम्प्टी स्पेस। यहाँ पर जो ई हम लोग लिख लिए हैं, ई होगा यहाँ पर एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस क्या है, ये बीच में अगर होगा तो ये क्या होगा, एक तो ये नीचे मतलब डाउन जा सकता है, एक राइट जा सकता है और एक लेफ्ट पे जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर 3 होगा। एंड जब बॉक्सेस इज नंबर 4, इसलिए 3 into 4। यहाँ पर देखो, अगर कॉर्नर में होगा तो दोनों टाइप पर मूव कर सकता है, एक तो लेफ्ट और एक डाउन, दोनों टाइप पर होगा। और ये भी 4 हो रहा है, इसलिए 2 into 4। और एक क्या आ रहा है मिडिल पर, ये चारों तरफ मूव कर सकता है। जो टोटल 9 नंबर बॉक्सेस है, उसमें उसमें 4 2 टाइप पे मूव कर सकता है, उसमें और 3 तरीके से मूव कर सकता है, और एक 4 तरीके से मूव कर सकते हैं। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 2.6 इसके आसपास आ जाएगा। तो 2.6 के मतलब यहाँ पर हम लोग 3 लेते हैं। तो इसलिए एवरेज ये शायद आ सकता है कि एवरेज जो है ब्रांचिंग फैक्टर, वो हम लोग 3Q लेते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा 3 हम लोग क्यों लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग विदाउट हेयरिस्टिक मेथड पे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एंड विथ हेयरिस्टिक मेथड ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आज तो बहुत कम स्टूडेंट आया है, इसलिए मैंने पूरा नहीं बोला, तो ये नेक्स्ट डे में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो।